हैं कि जब आपने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, which was that year? I joined Chandigarh University in 2019, 2019. That was before COVID. before COVID, yes. And what was your क्यों ज्वाइन किया आपने यूनिवर्सिटी? Because you had come back from Oman? I came back from Oman. Yeah, that time only, I guess, 2019 I came back Oman. From Oman, so उसी year में I joined Chandigarh University because I completed my masters. So I was at home only. I was working on my own business. So मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला था कि अभी just like you should come and work चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने प्रोफेशन में. So मेरे को लगा कि मतलब बात तो सही है अपना rather than working on own business अभी बहुत टाइम लगेगा and it is risk also. So मैंने सोचा कि why not to try. So I went there, interview the other interview clear हो गया. So मुझे था कि this is a good time at least side by side I can work on that only अपना business का भी and you will be having permanent income. So once you start earning on your own and you can spend that amount on your own business. So इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जब आपने ज्वाइन किया, were you from an education background कि you were completely? No. My previous background was only travel. Like I was working with the Yatra. I work with that ITC, Cox Ending, these company, and my whole background is belong to like travel company only. Travel and travel. Travel, yeah, travel. We used to do travel. Yeah. And इस टाइम में आपने कितने टाइम काम किया? इस I have worked with industry. I worked 9 years. 9 years. That's a lot of time. From 2009, 2009 से I started working. Yeah. I was campus placed child. So since 2009 to I guess 2030 tak I was working. Then after marriage also 1 year I worked. So almost if you take see it is I guess for 9 to 10 years. That's a lot of time. And इसके बाद how was the transition getting into education? I guess education line is much better than corporate line nowadays because you get the holidays and you get time for yourself also. So that even if you want to pursue your own any kind of passion, like now I'm working on travel as a fashion influencer, side by side working on my own business also. So I guess I get lots of time working with education. So you say it's a balanced industry जहाँ पे आप अपने आप पे भी you can spend time and you can do other So things. you can work on other things also, like you can brush up your skills. Like of course you need to read first before teaching to students. So मेरे ख्याल में it is a better career option you have and the professor and you get respect also. So in the corporate line nowadays it is like target based jobs. You need to do, you have a particular target and you have क्या कहते हैं उसको टाइम का कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं. सो अभी तो कॉर्पोरेट में ये हो गया ना, यू हैव टाइम टू कम टू ऑफिस बट कब आपको जाना है यू डोंट हैव टाइम. सो 8 बजे तक तो आई गेस नाउ डेज तो कॉर्पोरेट का टाइमिंग है ही है, स्पेशली इन ट्रैवल का अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट में. बट इसमें एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं है. एजुकेशन में ये है कि 4:30 यू फ्री हो एंड यू कैन डू योर ओन वर्क. And travel industry में तो अगर holidays चल रही हैं बाकी लोगों की, that you are off and it's more work for you. हाँ, you have to work because you have to work for others ना, जो घूमने जाए उनके लिए तो चीज़ें हैं. It's hospitality. And you have to be online 24 hours. हाँ, क्योंकि client can call you anytime. अगर वो travel कर रहा है and you have booked their tickets or you have booked their travel, so you have to be online. Have to be there for them. So let's start with your travel journey. जब आपने Cox and Kings में या yatra.com में काम किया है, तो were you on the back end or were you customer facing? I was initially customer facing only. First, I started with sales. So I started with training as a trainee only. I joined as a training. So after 6 months, I was shifted to sales executive. So I started calling to the people regarding. Of course, I guess that was good for me also because I was talking to the customer. I was getting to know that like how booking has been done. So as after that, I worked I guess as a sales executive 2 years. After that, of course, I got promoted. So I was a front face initially, but after 2 years,
3 years I worked as a operations in operation. So I worked as a relationship manager over there. So I was handling all the booking of the client who was who already on travel, and there was a team. It was I was handling one team of the females. पहले option था ना work from home. So जो भी females who were working home, so उनका टीम में हैंडल करती थी भाई. So what challenges have you faced किया ये इंडस्ट्री में ना ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो मैं ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ या ये Industry में? या ये बहुत मेरे को कंफर्टेबल करता है. भाई जो आपके टारगेट होते हैं टाइम्स, अदरवाइज इट इज़ फाइन इफ़ यू आर वर्किंग 10 to 6 वट एवर द कॉल्स यू आर रिसीविंग. पर मुझे ऐसा लगता है कॉर्पोरेट लाइफ में ना व्हेन यू रीच होम यू डोंट हैव योर ओन लाइफ, पर्सनल लाइफ नहीं है आपकी. यू अभी मैंने बताया ना, यू हैव टू बी ऑनलाइन. सो आपको कॉल कभी भी क्लाइंट का अटेंड करना पड़ रहा है, आपको कभी भी लैपटॉप खोल के बैठना पड़ रहा है. इवन इफ यू आर इन फैमिली फंक्शन कहीं पे भी हो, यू हैव टू वर्क. आपके पास कोई वो नहीं है, एक्सक्यूज़ नहीं है कि दैट आपको नहीं करें, क्योंकि क्लाइंट आके आपको ही बुलाएगा, आप पे चिल्लाएगा, आपको ही बोलेगा. तो एंड अभी तो वैसे मुझे छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, 5 to 6 ईयर हो गए हैं. अभी करंट ट्रेंड्स क्या है मार्केट में, क्या चल रहा है, कैसा अभी कल्चर है वहाँ पे. बट व्हेन आई वाज वर्किंग देयर वाज सच प्रेशर ऑन यू दैट यू हैव टू इस मतलब कंप्लीट द टारगेट. अगर आपका टारगेट कंप्लीट नहीं है तो आपकी सैलरी पूरी नहीं आएगी. एंड इवन इफ़ यू आर आपको छुट्टी लेनी है तो आपको वो भी नहीं आप मिलेगी छुट्टी, बिकॉज यू आर टारगेट आर कम्प्लीटेड. तो भी होता था कि मतलब कहीं ना कहीं आपको ना यू आर अंडर स्ट्रेस कि आपके टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहे हैं. एंड आपको कॉलिंग कर रहे हो, आपके पास टारगेट है कि आपको इतनी कॉल्स दिन में करनी ही करनी है. हाँ. सो मुझे क्या ये लगता है कि आपको ना वहाँ पे सीखने को ज़्यादा नहीं मिलता. टारगेट किस तरह के होते थे? टारगेट मीन्स कि आपको सेल्स टारगेट दैट यू हैव टू, सुबह क्या होता था कि आपको इतनी बुकिंग क्लोज करनी. को अमाउंट होती थी कि नंबर ऑफ बुकिंग्स होते? कुछ कॉर्पोरेट में अमाउंट्स होते हैं और कुछ कॉर्पोरेट में होता है कि नंबर ऑफ पैसेंजर इतने होने चाहिए. वही बोल रही हूँ ना कि प्रीवियस टाइम जब आई वाज वर्किंग दैट टाइम तो ये सब कुछ था. नाउ डेज अभी करंट क्या कल्चर है, क्या ट्रेंड्स है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. पर हमारे टाइम पर तो यही था कि नंबर ऑफ बुकिंग शुड बी क्लोज, इतनी होनी चाहिए. स्पेशली यात्रा में था ये चीज़ें. अभी कुछ कॉर्पोरेट्स में हमने चेंजेस करे हैं कैसे करे, बट तब भी प्रेशर होता था कि आपको इतनी बुकिंग्स क्लोज करनी है इफ़ यू आर इनटू सेल्स. बट अभी मेरे ख्याल मैंने सुना है, आई हर्ड इट, आई डोंट नो वेदर इज राइट और लॉन्ग, कि अभी ऑपरेशंस जो हैंडल कर रहे हैं उनके पास भी टारगेट्स हैं कि आपको भी क्लोज करनी है. मतलब प्रेशर इज हेवी. Pressure- आई थिंक तो जो पहले था आफ्टर कोविड इतना ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं ना कि प्रेशर तो है, बिकॉज सैलरीज आर नॉट द सेम आफ्टर कोविड. सो बल्कि लेस सैलरी वी आर गेटिंग. एंड अभी बुकिंग्स भी क्योंकि पीपल आर मोर अवेयर ऑफ द ट्रैवल्स. अभी ट्रैवल ब्लॉगर्स इतने आ गए हैं, तो विद द हेल्प ऑफ देम पीपल आर बुकिंग. हाँ, अपने आप कर रहे हैं बुकिंग. एंड ऑनलाइन भी इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं. ट्रैवल एजेंट दे वर वर्किंग अर्लियर ऑन द कमीशन बेसिस. कमीशन आ रहा है तो ऑफ कोर्स आप सैलरी दे पा रहे हो जो छोटे मोटे लोकल ट्रैवल्स बट अभी जो है अभी पीपल आर मोर अवेयर ऑफ द ऑनलाइन बुकिंग्स और उनको डायरेक्ट मिल रहा है डिस्काउंट. लेकिन अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो तो आपको इतना डिस्काउंट नहीं मिल रहा जो आपको ऑनलाइन दे रहा है. फॉर एग्जांपल आपको अभी बैंक की तरफ से डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो. और ट्रैवल जैसे एग्जांपल तो मेक माई ट्रिप हो गया, यात्रा भी ऑनलाइन कंपनी है, मोस्टली दे वर्क ऑनलाइन. सो उनके साइट पे यू आर गेटिंग एक बुकिंग पे आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है डिपेंड ऑन द ऑफर. कार्ड्स भी आपको अलग मिल रहा है. गो टू द ट्रैवल एजेंट और द टूर ऑपरेटर, आपको डायरेक्ट बुकिंग कर लो. ओके, इवन आई प्रेफर नाउ डेज टू बुक ऑनलाइन. सो whenever I travel I book online because I am getting फ्रॉम द बैंक साइड ऑल्सो. और अभी तो टिकट्स आप बुक करते हो, फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर यू हैव, तो आपको उसके बोनस पॉइंट मिलते हैं, दैट इज़ एक्स्ट्रा. आपको क्लब एक्सेस मिल रहा है, ये सारी चीज़ें तो ऑनलाइन मिल रही है. ट्रैवल एजेंट इतनी सारी ऑप्शन नहीं दे पाए. हाँ, ट्रैवल एजेंट का दे है, उनका बेनिफिट ये है कि अगर आप बुकिंग कर रहे हो उनके थ्रू कि यू आर दे आर रिस्पॉन्सिबल. कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन एटलीस्ट हैव समवन हु कैन हेल्प यू अप देयर.
आप उनको कॉल कर सकते हो इफ़ यू आर न्यू टू ट्रैवल, किसी कंट्री में ट्रैवल करो लाइक यूरोप में ना कहीं पे, तो दे आर देयर विद यू, आपको हेल्प करेंगे। कुछ भी आपको किसी तरह का भी कुछ इशू आता है ड्यूरिंग ट्रैवल, जैसे कई बार होता है लोगों को पासपोर्ट्स गुम हो जाते हैं या फिर कहीं पे भी इमिग्रेशन में भी हो जाता है, तो दे आर देयर टू हेल्प यू, एटलीस्ट गाइड यू। सो इसलिए ट्रैवलिंग नाउ डेज, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग यूरोप और अदर कंट्रीज वेयर यू हैवंट ट्रैवल और केयर, क्योंकि यहाँ के रूल्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, तो वहाँ पे ये है कि यू शुड डू योर बुकिंग थ्रू द ट्रैवल एजेंट एंड देन ट्रैवल। ऑनलाइन बुकिंग भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि अगर आप एक ट्रैवल एजेंट के साथ आप इन्वॉल्व हो कि वो आपकी हेल्प करें फॉर टिकटिंग एंड मैनेजिंग योर एंटायर ट्रैवल प्लान। But if you are seeking some kind of discount, then तो of course travel, if you're going from, if you think the travel agent would offer you the same cost जो आपको ऑनलाइन मिल रहा है वो नहीं मिल सकता। बट येस, सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज राइट, आप सही बोल रहे हो, वो उसके लिए तो यू शुड गो टू ट्रैवल एजेंट ओनली। आई थिंक इसको मैं ऐसे फिल्टर कर सकते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम किसी सिटी या ट्रिप पे जा रहे हो तो बेटर है गो थ्रू अ ट्रैवल एजेंट, उनकी नॉलेज को एक्सप्लोर करो। और अगर आप मल्टीपल टाइम्स किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो और या एक आप विजिट कर रहे हो जो आप जा रहे हो, स्पेशली वीज़ा अगर आपको करवा रही, तो ट्रैवल एजेंट आपको अच्छे से गाइड कर सकता है कि आप खुद अप्लाई करते हो आपको रिजेक्शन ना जाएगा, देन ऑफ कोर्स यू नीड टू री अप्लाई, फिर आपको ट्रैवल एजेंट के पास आना पड़ेगा। safe basically your sense of security, safe, Yeah. and you're trading your money for all these features, not for just a ticket. टेल मी, ये जो यात्रा का बिजनेस मॉडल था, इफ़ यू नो अबाउट इट, कि क्या ये हमने सुना है कि वो हज़ारों सीट्स खरीद लेते थे फ्लाइट से एंड देन दे यूज्ड टू सेल एट देयर ओन प्राइस, या जब भी हम ऑनलाइन जाके कोई टिकट बुक कराने की कोशिश करते हैं तो वो उसी वक्त वो डील्स कैसे होती है, हाउ इज द स्ट्रक्चर? ये तो बैकएंड वाले करते थे, वी वर इनटू सेल व्हेन आई वाज वर्किंग देयर, बट मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। बट येस, दिस इज ट्रू कि हम बल्क में बुकिंग उठाते हैं। सो अगर इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन अदर साइड, तो यात्रा के पास अगर सीट है तो वो बल्क बुकिंग है उनके पास है, सो वो डिस्काउंट पे तो नहीं देंगे, क्योंकि अगर एयरलाइन के पास वो सीट नहीं है तो वो यात्रा के पास अगर है तो वो ऑफकोर्स डिस्काउंट पे नहीं देंगे, बट वो एक्सपेंसिव ज़रूर बेचेगी। राइट। क्योंकि वजह से अभी एग्जाम्पल्स, अभी कोई भी ये जो शो होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, राइट। तो ऑनलाइन टिकट दिखाता सोल्ड आउट, अगर किसी एजेंट के पास है तो वो उसको डबल द रेट बेचेगा, क्योंकि ऑनलाइन इट इज़ नॉट अवेलेबल। सो सेम गोज विद द एयरलाइंस ऑल्सो, वो बल्क बुकिंग है उनके पास, बट दे विल सेल विद एक्स्ट्रा चार्जेस, बिकॉज लोगों को तो ट्रैवल करना ही करना है, सीन्स नहीं मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल न्यू ईयर हो गया और ये क्रिसमस हो, कोई भी ऐसी ओकेजन हो जब पीपल आर हैविंग हॉलीडेज, सो ऑफ कोर्स दे वांट टू ट्रैवल समवेयर। सो तब जब पीक सीजन है, तब इफ़ यू आर नॉट फाइंडिंग एनी टिकट्स ऑन द एयरलाइन साइड डायरेक्टली, तो आपको अगर ऐसी ऑनलाइन साइट पे मिल रही है तो इट मीन्स दे हैव बल्क बुकिंग। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको सस्ती मिलेगी, बट ऑफकोर्स हाँ, डिस्काउंट ऑप्शन दे हैव, दे मस्ट बी हैविंग। जैसे आपको अभी बताया था मैंने कि बैंक के थ्रू अगर मिल रहा है डिस्काउंट, HSBC दे रहा है, HDFC बैंक दे रहा है कि क्रेडिट कार्ड पे आपको इतना मिल रहा है, तब आपको मिल सकता है डिस्काउंट, अदरवाइज तो अभी क्या हो। So from travel industry you got married and then you shifted to Oman, and वहाँ से आपकी मॉडलिंग का करियर शुरू हुआ? मॉडलिंग से स्टार्ट करा था मैंने। हाँ। सो देन आई थॉट, मैंने एक्चुअली कोविड टाइम के ड्यूरेशन में आई थॉट कि मैं मॉम ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। मॉम ब्लॉगिंग, ओके। सो मॉम ब्लॉगिंग का ये था कि माई किड वॉज अ कैमरा शाई, सो मुझे ये था कि आई एम पुटिंग सो मच प्रेशर ऑन माई किड, क्योंकि वो छोटा भी था तब, कि ऑफकोर्स बच्चे को तुम अपने अकॉर्डिंग होल्ड नहीं कर सकते, तो बच्चा है तो वो तुम्हारी इंस्ट्रक्शन को नहीं समझे। तो आई थॉट टू स्टार्ट विद मॉम ब्लॉगिंग, क्योंकि तब नया नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ था इंस्टाग्राम पे, वो भी टाइम पे बहुत सारे लोगों को भी काफ़ी ख्याल भी मिला है। तो आई स्टार्टेड दैन, बट दैट आई गॉट अ ऑफर फ्रॉम मॉडलिंग फ्रॉम मस्कट ओनली। तो कहीं ना कहीं मेरा ड्रीम भी था कि मुझे ऐसे वो ड्रीमी गाउन में शूट्स करने हैं। देन और बाई चांस मुझे ऐसा एक ऑप्शन मिला वहाँ पे कि यू नीड टू डू शूट इन दैट पर्टिकुलर ड्रीमी गाउन। सो जो इंडिया में तो ऑफ कोर्स आई हैवन सीन कहीं पे किसी डिज़ाइनर के पास है भी है, होगा भी, तो दे चार्ज सो मच। वहाँ पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आई विल डूइंग इट, बट ऑफ कोर्स एंड आई वाज गेटिंग पेड फॉर दैट। सो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। देन आई डिड वन शूट, उसके बाद ऑप्शंस और ज़्यादा
आनी शुरू हो गई. Then I started that I should not go forward with that mom blogging. I should start modeling only. So modeling start करा मैंने वहाँ पे. Then I came back to India. तो स्टार्ट करा था मैंने अपना, वैसे तब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर लिया था मैंने जाना, ज्वाइन करा मैंने. तो साथ के साथ यहाँ से भी ऑप्शन आनी शुरू हो गई कि मॉडलिंग का ही आया था ऑप्शन. पर मुझे बीइंग ए मॉडल, लाइक पर्सनली अगर मेरा आप पूछो रेफरेंस, मुझे था कि बीइंग ए मॉडल मुझे पता नहीं क्यों वो अच्छा नहीं लगता कि मुझे मॉडल नहीं बनना. देन आई थॉट start, why not start with the fashion influencer, because people used to appreciate my dressing sense. So मुझे था कि I should start with this only. So then I told you that I am having my own साड़ी brand, Plays and Rips करके. तो उससे side by side whenever I wear साड़ी, तो when I get compliment of it ना, I feel so good. So मुझे था कि अगर लोग कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मुझे अपना आई शुड कीप साड़ीज इन माई ब्रांड. तो अभी मैंने वो स्टार्ट करा. लेट्स सी कब वो होगा, प्रॉपर बिल्टअप होगा, बट आई स्टार्टेड. सो जब आप ओमान से वापस आए थे तो दिस वाज द सेम आइडिया जो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे? नहीं, दैट वाज वेस्टर्न ड्रेसेस ओनली, अच्छा, बट समथिंग इन फैशन ओनली. फैशन ओनली ऑफ कोर्स. ओके. सो कहीं ना कहीं वो था मेरे को फैशन में. आई डोंट नो मैं कैसे ट्रैवल लाइन में आ गई. आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट वो कहते हैं ना, तुम्हारा पैशन जो है वही कहीं ना कहीं होता है ना, तुम्हें पहुंचा देता है कभी ना कभी. तो वो पैशन नहीं था मेरा शुरू से कि मुझे फैशन में ही कुछ करना है. ट्रैवल इज़ नॉट माई कप ऑफ टी अभी भी. बट हाँ, ये है कि ट्रैवल, बीइंग इन ट्रैवल, मुझे ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रैवल के रिलेटेड ही पता चल रहा है. यू गेट टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री और सिटीज़ कैसा है. तो विद दैट कल्चर यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स इन टर्म्स ऑफ फैशन ऑल्सो. कब कहाँ पे कौन सी कंट्री में कैसा फैशन है, कैसा. सो दैट फ्रॉम दैट ऑल्सो यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स एंड कैन inspire other people use that particular fashion trends of other countries or other cities. अभी तो मैं सिर्फ ट्राई करा नहीं है, बिकॉज वेन एवर ट्रैवल, मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मैं ट्रैवल करूँगी, वहाँ पर जाके ऐसा शूट करूँगी उनके प्रॉपर वर्टिकुलर अटायर में, बट ऐसा हो नहीं पाता बिकॉज व्हेन यू आर ट्रैवलिंग स्पेसिफिकली विद योर किड, सो इट वोंट हैपन. बट येस, समवेयर इट इज़ इन माई माइंड कि वेन एवर आई ट्रैवल नाउ, बिकॉज माई किड हैज़ ग्रोन अप नाउ, सो कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्ट करूँगी फॉर माई ओन प्रोफाइल. पीपल शुड गेट टू नो अबाउट. एक तो ट्रैवल का भी है एंड what kind of culture they are having, because I travel so many countries and I really impressed by their culture kind of dressing. हमारे यहाँ पे है कि we follow other वेस्टर्न कल्चर. जैसे हमारा इंडिया का जो कल्चर है, हम मोस्टली नहीं आजकल लोग प्रेफर करते. बट व्हेन यू गो टू अदर कंट्रीज ना, यू विल गेट टू सी, अगर उनका कुछ ट्रेडिशनल कुछ है तो वो अपने ट्रेडिशन को इतना ज़्यादा वो करते हैं ना, प्रमोट करते हैं. प्रमोट कह सकते हो जो भी है, बट दे आर सो मच इन लव विद देयर ओन ट्रेडिशन. जैसे हम लोग वैसे तो अभी आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स स्टार्ट हो गए हैं सब कुछ करना. जैसे अभी लोहड़ी आ रही है तो दे यू नो शो देयर what is the main attire we should wear in Holi. But in other countries it's like कोई भी कुछ भी हो, कोई भी इवेंट हो, but they wear their own traditional dress. जैसे साउथ कोरिया में हो गया, I went there, उनका नॉर्मल भी कुछ भी अगर है ना, वैसे साउथ कोरिया इज वेरी फेमस फॉर फैशन एंड नो, आपने सुना होगा व्हाट के प्रोडक्ट, स्किन. बट व्हेन यू सी देम ना, कोई भी इवेंट है तो दे आर वेयरिंग देयर ओन, बट आई डोंट नो व्हाट दे कॉल फॉर देयर ड्रेस, मुझे भी याद नहीं आ रहा. बट यू विल सी दोज पीपल इन दोज ड्रेस ओनली एंड दे लुक सो गुड. एंड तब जो होता है हम लोग वहाँ पे जाके हम लोग इंडियन ड्रेस पहन के घूम सकते हैं, बट अपनी इंडिया में वी वॉन्ट प्रेफर सच काइंड ड्रेस. तभी बोल रहे कि ट्रैवल से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं. इफ़ आई एम इन टू दिस इंडस्ट्री है, बट मैंने सीखा भी बहुत कुछ है related, whether it's related to fashion, whether it is culture or anything. So travel कहीं ना कहीं मुझे benefit तो है मुझे, कि क्योंकि मुझे if I want to travel I don't need to ask to other people or any agent, क्योंकि मैंने खुद काम करा है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कैसे कितना charges they would take.
I can make my own itinerary, I can make my own cost sheet and everything. I don't need help from other. So ये भी कहीं ना कहीं benefit is related with my fashion or so I'm still learning so many things. I am not saying that I am very big influencer, but I'm trying to be influencer. Let's see. So, balancing your life as an influencer and then balancing, you're doing as a jury. आप काफ़ी shows पे आप judge कर रहे हो. Yeah, because people see my profile. I don't say मैं अपनी तारीफ भी करूँगी but मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं they are going through my profile. उनको अच्छा लगता है कहीं ना कहीं because being a model of course मैंने काम करा है काफ़ी टाइम ना. तो मोस्टली मेरी पिक्चर्स अगर मेरे प्रोफाइल पे हैं तो मॉडलिंग की है क्योंकि देर आई गेट प्रोफेशनल पिक्चर्स ना तो आई प्रेफर टू पुट प्रोफेशनल पिक्चर्स ऑन प्रोफाइल तो मॉडलिंग की होती हैं. सो इसलिए कहीं ना कहीं वो भी मुझे हेल्प कर रहा है एज ए दैट मॉडल टाइप. सो दे प्रेफर मी टू ज्वाइन एज ए जूरी ओवर देयर बिकॉज ऑफकोर्स ए फैशन शो है तो मॉडल ऑफकोर्स दे कैन ओनली मॉडल कैन अंडरस्टैंड वॉट हाउ टू वॉक एंड हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. वैसे तो मैंने अभी कभी ऐसे रैम्प वॉक करा नहीं है. आई रिसेंटली डिड रैम्प वॉक कभी करने जब एज ए जूरी गई थी मैं तो आई वॉज लिटली नर्वस. In fact, I was not able to speak in front of those kids because they are very confident. So, but yes, कहीं पे भी आप as a jury भी जा रहे हो ना, still you are learning something. So I learned from those kids that how you can walk confidently on the ramp. So it is like मेरे लिए भी I guess I'm learning from every you can say platform. How has Chandigarh University helped you in your influencing journey? Chandigarh University. Unknowingly. Yeah. Yeah, of course, Chandigarh University not even helping me only, but yes, Chandigarh University helping other students also because if I am there, of course, I work as a professor, but I learn so many things from the Chandigarh University. For example, I am taking grooming classes to the student. So I read new trends, I read, how to groom. So of course, if I am learning, I can teach to students also. So कहीं ना कहीं whatever we are teaching, कहीं ना कहीं हम इन चीज़ें नहीं, we are not, know each and everything regarding fashion, regarding grooming. We learn recent trends also from the books with the help of the books. So I can relate. So that's a blessing in disguise. Ki just because as a professor you're grooming the new age. Or moreover, we teach the student like who are there for to join airlines, hospitality industry. So in hospitality, airlines and tourism industry, so they need professionals only. So of course, if you want your kids to be professional, first you need to be professional. Huh? So if you look professional only, then you can teach your kids that how to look professional, how to dress up yourself, how you can express yourself. Because if you are confident, whatever you're wearing, only then you can express yourself. Whether it's during the interview, whether you are performing, or whether you are on on the job. So not from the Chandigarh University, but from the students also. We are learning so many things. Whether you can call it trends, whether you call it confidence. So Chandigarh University, of course, helping not me, but everyone. Everyone. What is your biggest career regret? Career regret? वैसे तो I don't I don't focus on regrets. But मुझे ऐसा लगता है कि I should choose some fashion designing rather than this tourism industry. अच्छा उस टाइम पे. उस टाइम पे. अच्छा. But अभी मुझे I had regrets. But तब मुझे लगता था कि I should go for the fashion industry. But that time there was no much scope for fashion. क्योंकि तब तो fashion का इतना नहीं था. 90s में तो we were like whatever we are wearing, this is fashion. So nowadays, the fashion is next level. Like you need to style it. Fashion is not like whatever you're wearing, the clothes. Fashion is how you can express yourself. It is self expression, you can say. So तब के टाइम इतना नहीं था. Whether we were तब के टाइम में था कि if
अगर आप ट्रैवल में हो, जैसे मैं ट्रैवल में ज्वाइन करा था, जस्ट यू आर वेयरिंग द सूट, दैट बिजनेस सूट, ओनली देन यू लुक प्रोफेशनल। तब मुझे था कि यार क्या बोरिंग सा है, मतलब फैशन में होना चाहिए था, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग जो बच्चे थे ना, दे वर वेयरिंग द कलरफुल ड्रेसेस, दे कैन वेयर एनीथिंग, बट बीइंग अ प्रोफेशनल वी हैड टू वेयर दैट पर्टिकुलर सूट ओनली। तब लगता था कि नहीं, अ, चलो फैशन में जाना चाहिए, बट अभी आई डोंट हैव रिग्रेट्स। मुझे ये है कि नाउ आई एम फॉलोइंग माई पैशन अलॉन्ग विद, आई एम मोर अवेयर अबाउट द डेस्टिनेशन नॉलेज एंड groovy, जो मैंने आपको बताया, and lots of things we actually learn. Being a professor, so there is no end. You have to learn. If you know something about any new trends or anything new, you have to share it with your kids, like of course students. So there is no end of learning. वैसे तो आजकल there are so many books and everything comes up. लोग ब्लॉग भी बनाना शुरू हो गए हैं, बट आई गेस the kind of profession I am in now, I should not feel any kind of regret now. So I'm happy. So हाँ, earlier I was having such kind of regrets कि मुझे फैशन में जाना चाहिए था, but nowadays I am happy whatever I'm doing, because मुझे लगता है कि there are so many people जो ये भी नहीं कर पा रहे, they are not having time because they have chosen some other profession, or but the kind of profession I have chosen, I don't think so I should feel regret about it. अभी कल को इफ माई किड गेट टू नो, वो भी बड़ा होता है, उसको भी आई कैन टीच सो मेनी थिंग्स, whether related to travel, whether related to fashion, Absolutely. बस acknowledgement. yes, everything. So I guess nowadays I have everything, because there is never ending learning. But yes, when he will grow up, so he will be having so many things already. Yeah. So this how do you manage this? Because do you feel that kahin na kahin family life imbalances? Yeah, because there are many things you're involved in. मेरे ख्याल में ना फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू हैव फैमिली सपोर्ट ना, ओनली देन यू कैन डू समथिंग। देखिए, अगर मैं बोलूँ कि मैं सिंगल हैंड सब कुछ हैंडल कर पा रही हूँ, नहीं। आई हैव माई फैमिली, माई इन-लॉज आर देयर, टेक केयर ऑफ माई किड्स व्हेन आई एम इन कॉलेज। So, of course, abhi to his school is also 8 to 2 o'clock. After that, he goes to tuition. He's not spending much of time in them also. But whenever I'm not there, I don't have any, Worry. Yeah. that my kid is at home alone. So, that's why he's grown up now. So, and अभी तक तो my husband was supporting me. He is not here now. He is not out of India. So earlier he comes on weekends. So we used to go outside to take him. So but still I try to give him as much as time I should give him. Kyunki he is also growing up. Or I guess it is a very big responsibility to bring especially a boy. Yeah. So I don't know whether I am giving enough time to him, but I will try to give him as much as time, because I want him to be a nice and kind man, not कि इसको टाइम ना दे पाऊँ तो main thing he should learn, he should I don't know, What do you want your son to be? whatever he wants to be. There is no pressure. I don't want to put any kind of pressure that I want you to be like that. Because everyone has their own quality. So being a parent, I don't think so. We can just guide them, but we can't put pressure on them that you should be like that. जैसे भी आजकल लोग बोलते हैं ना, you need to be IPS officer. बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है ना, हम बीइंग इंडियन किड्स, आई गेस सबसे ज़्यादा सब मिडिल क्लास फैमिली ये प्रेशर रहता है बच्चों को, यू हैव टू स्टडी, देयर शुड 90% मार्क्स इतने होने चाहिए। हमारे ऊपर भी था प्रेशर ये वाला, बट आई डोंट वांट टू पुट सेम प्रेशर ऑन माय किड, बिकॉज अभी भी मैं देखती हूँ उसके मार्क्स, ही इज़ नॉट गेटिंग वेरी गुड मार्क्स फ्रॉम द स्कूल, समवेयर आई फील बैड अबाउट इट ऑल्सो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अदर थिंग्स ही इज़ वेरी स्मार्ट। तो अभी तो वैसे भी इट इज़ नॉट एज टू पुट सच काइंड ऑफ प्रेशर कि नहीं भी आपको 90% मार्क्स अभी आएंगे तभी आप IPS ऑफिसर बन पाओगे, नहीं।
marks, I guess, won't give you that kind of direction to your kids specifically. तो बाकी रही बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि whatever he will be basically the main thing I want, if you ask me, that I want him to be happy. Because मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल बच्चे इतने प्रेशर में है ना, दे नॉट इवन हैप्पी, दे आर जस्ट अंडर प्रेशर कि मुझे भाई इस लेवल पे जाना, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, स्पेसिफिकली मिडिल क्लास फैमिली आपने देखा होगा, गवर्नमेंट जॉब में जाना है आजकल। तो पेरेंट्स दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ दैट कि ऐसा प्रेशर नहीं डालना एजुकेशन, बट ऐसा प्रेशर नहीं डालना चाहती मैं अपने बच्चे में ना, कि आपको इतने मार्क्स लेके ये बनना है, नहीं बनना। आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी, वट एवर ही डूइंग, वट एवर ही वांट टू बी, ही विल बी, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट आई गेस हैप्पीनेस। So apart from careers, जैसे आपने बोला I don't want him to be this, whatever you chooses to be. So if we leave the career part, any characteristics which you want कि यार ये होना ज़रूरी है एक बच्चे में, बच्चे में क्या क्या आपको बड़ा होगा? मतलब इन व्हाट, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। Like how you want क्वालिटी qualities, yeah, like you want him to be independent or he wants to be settled with you, you want, मतलब आपने कुछ ना कुछ विजन उसका बनाया है? I want to be basically be kind, हाँ, and I want to be just whenever he is doing anything, I want to be he just use think twice and thrice, because आजकल हम लोग एग्रेशन में आके और इतने ज़्यादा उसमें आके ना कुछ भी करते हैं, and we take a wrong decision. So I guess you should be kind and humble, and गुस्सा तो आसपास नहीं, जैसे aggression में I don't want to be a, but and I guess he is nowadays, so I can what if I give him ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि he is having such kind of quality, because he is very good with the other kids, specifically with the girls, because in my circle and with my friends, they are all having girls only. Okay, the good thing I see and I get is humble with them, बल्कि उनको बोलता है बाकी फ्रेंड्स को भी, you should not tell girls like this, you should not talk girls like that, because his father used to teach him. So I guess he's getting so many things from family से भी सीखता है बच्चा, but the main thing I want to be इसमें जो होनी चाहिए वो be kind and humble, and aggression तो बिल्कुल भी, आजकल के बच्चे बहुत aggressive है, मैंने बच्चों को देखा है, they are so much into the gadgets, सारा दिन उस पे होते हैं, aggression I have seen the kids, अब अगर उनको कुछ बोल दो तो it is like they can hit and they can आप छोटे बच्चे knows about that Squid Game, मुझे भी सच में बताऊँ मुझे ये पता था, मैंने कभी नेटफ्लिक्स में ये चीज़ ओपन करके नहीं देखी, पीपल आर अवेयर ऑफ दैट, बट नॉट इवन माई किड। तो आप उसको अभी जैसी जिस द काइंड ऑफ कंपनी इज हैविंग ना, बच्चे दे आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग नाउ, व्हाट इज गोइंग ऑन द नेटफ्लिक्स एंड एवरीथिंग। मेरे को कहीं ना कहीं मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि he is not into all this thing, he doesn't know what is there on the Netflix, what is Squid Game, what is all these things. And sometime one day his friend told, did you see the Squid Game? I says, he came to him, Mama, what is the Squid Game, I want to see that. तो I was like, नहीं, this is not for you. तो but still curiosity तो होती है बच्चों, but I want to keep him away all these things, because उसमें कितना aggression दिखाते हैं और कितना कुछ, can be student kids are learning all these things from the TV only, और इनकी तो अभी अगर वैसे तो मैं सारे बोलते हैं कि आप बच्चों को पता होना चाहिए, बाहर जाएगा उसको नहीं पता, मुझे ऐसा दिस नॉट राइट एज फॉर, तभी उसमें एग्रेशन नहीं है। एंड अभी वो लेगोस के साथ खेलता रहता है, हिज फेवरेट गेम इज लेगोस, ओनली टू मेक लेगोस, सो इसको कुछ नहीं चाहिए, जस्ट लेगोस दे दो, यू टू इट, एंड समवेयर आई सी हैप्पी अबाउट इट कि अच्छा है कि उसको यूट्यूब और नेटफ्लिक्स रखना नहीं पता है, बट क्योंकि बाबे बच्चे अपने हम सीख भी जाते हैं, बाहर से सीखे ना, गेम भी सीखे हैं, बट अभी तक जब तक मैं नहीं दे रही हूँ ना तब तक डिसफाइन बात, और अभी दिस इज़ द ओनली राइट एज, जब भी आप बच्चे को सिखाओगे वही आगे जाके करेगा, बिकॉज मैंने कहीं तो सुना भी था कि 5 ईयर तक kids need love and all the attention, and when he is growing up, the kid, he or she, they need थोड़ा बहुत थोड़ा डायरेक्शन, क्या करना है, कैसे करना है, how to be humble, how to be kind, the manners basically. That's very interesting what you just said कि
एट अ सर्टेन लेवल हमें उनको हैंड होल्ड करना है, बट उसके बाद ना वी जस्ट हैव टू जस्ट गिव देम डायरेक्शन। डायरेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है एंड यू वेरी सिंपली आपने उसको Actually, as per my experience, like I'm not a perfect mother still, I think, because I still think I should give him so much time. If you're working, I don't think so you can give so much time to okay, because it goes to you also. yeah, absolutely. So that way I feel somewhere oh, कि आप कह सकते हो गिल्ट, बट फिर मुझे भी लगता है कि ही इज़ फार बेटर देन अदर्स. सो of course he should learn these things also कि क्या चल रहा है, what is going on outside world. But ठीक है, the way I am directing him, whatever I will teach him, I guess he will learn slowly कि why mama was not ready to show me all these things. Yeah, they will. Vaishnav was not along. Yeah, they will understand. They will understand. बट अगर अभी आपसे उनको ये सब कुछ दिखाओगे, मुझे लगता नहीं है कि वो बाद में कुछ से नहीं. Right. I think हर चीज़ का एक एज होता है. एंड पेरेंट्स Right. में ही बोलते कि आई एम द परफेक्ट, हर बंदे का पेरेंटिंग का तरीका अलग होता है. तो मैं इट इज़ माई वे व्हाट आई थिंक, बिकॉज अपने बच्चे का खुद को बताओ Correct. पर. वो कहते हैं हर चीज़ का एक टाइम होता है. एंड अगर मैं बोलूँ आज टाइम किस चीज़ का, आज टाइम है फ्लेक्स ऑफिसेस का. आज आप हमारे ऑफिस आए हो एंड यू मस्ट हैव नोटिस देयर आर मेनी कंपनीज वर्किंग आउट ऑफ हियर एंड वी हैव मल्टीपल रोल. Space. या It's going good actually. That's the podcast thing, no? So I'm really liking it. I'm liking the setup and of course the company also. So this flex office industry na has really grown, and this industry is the future. Nobody needs to build an office. We need a rental space. They need a Space. flexible space which is furnished, serviced, managed. होटल की तरह आप आओ, अपना you work whatever you want to work, whatever business you want to start. That's it. Of course, if I want to open my business, so I will prefer such kind of space only. Is I don't want to take such kind of stress कि मुझे पहले जाके मैं ढूंढूं फिर मैं सेटअप कराऊं. So, people don't have such time also, and they don't even want to spend such kind of money also. Yeah. So this is I guess a better option. So this is where we all fit in, and this is how we are building our podcast also, that we want to invite people. So